الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب زکوٰۃ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ہم نے زکوٰۃ کی تاریخ، اس کی فرضیت، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پڑھا اور سمجھا، اور قرآن اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں زکوٰۃ کے مختلف جہات پر بحث کی، اس کے مصارف کو سمجھا۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ کس مال پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ جن اموال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے ان کی شریعت نے خاص مقدار مقرر کی ہے، اور جب کسی شخص کے پاس مقررہ مقدار پوری ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ اور وہ کون کون سے اموال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، انہیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 4 قسم کے اموال پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے، جس میں سونا، چاندی، نقد رقم وغیرہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ مویشی شامل ہیں، ہر قسم کے تجارتی مال شامل ہیں، اور زمین سے حاصل شدہ اشیاء مثلا پھل، سبزیاں اور معدنیات وغیرہ شامل ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سونا، چاندی اور نقد رقم کی کتنی مقدار پر زکوٰۃ دینے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، جبکہ اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سنن ابی داؤد اور سنن الکبریٰ میں جو احادیث نقل کی گئی ہیں ان کا ذکر کرنا یہاں پر بہت ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سونے میں تم پر کچھ نہیں ہے یہاں تک کہ 20 دینار ہو جائیں، اور جب تمہارے پاس 20 دینار ہو جائیں اور ان پر سال گزر جائے تو ان پر نصف دینا زکوٰۃ ہے، اور اگر زیادہ ہوں تو اسی حساب سے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار زکوٰۃ لیتے تھے، اور ہر 40 دینار پر 1 دینار یعنی اس کا 40واں حصہ لیتے تھے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس زمانے میں یعنی عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دینار سونے کا تھا، اور 20 دینار کا وزن 7.5 تولے سونے کے وزن کے برابر ہوتا تھا، اس لیے حدیث پاک میں دینار کا تذکرہ آیا ہے۔ اسی طرح جب ہم چاندی کے نصاب کو سمجھنے کی کوشش کریں تو حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، جبکہ اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور زکوٰۃ میں 40واں حصہ دینا فرض ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو 100 کا 2.5 40واں حصہ بنتا ہے۔ اس بات کو بھی ہم اگر حدیث پاک سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ابن ماجہ میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں اور مسند احمد بن حنبل میں ہمیں یہ حدیث مبارکہ ملتی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کے نصاب کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 52.5 تولے چاندی سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی قیمتی جواہرات ہوں اور آپ ان کی تجارت کرتے ہوں یا ان کا بزنس ہو تو پھر آپ ان پر زکوٰۃ ادا کریں گے، لیکن اگر آپ کے وہ قیمتی جواہرات اپنے استعمال کے لیے ہیں تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، چاہے ان کی مالیت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جانوروں پر جو زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں بھی ہم احادیث مبارکہ میں پڑھ چکے ہیں
कि तमाम जानवरों पर ज़कात आयद नहीं होती, बल्कि सिर्फ 3 किस्म के जानवरों पर ज़कात आयद होती है अगर वो साइमा हो। मसलन वो कौन कौन से जानवर हैं? ऊँट, गाय और बकरी, भेड़ वगैरह। अब यहाँ पर साइमा का वर्ड आया है तो इसको समझना भी ज़रूरी है कि साइमा किसे कहते हैं। साइमा एक ऐसा जानवर है जिसे उसके मालिक ने पूरा साल परवरिश किया हो, यानी उसकी नशोनुमा की हो, उसका ख्याल रखा हो ताकि उसका दूध ज़्यादा हो जाए या उसकी ऊन बढ़ जाए या जानवर तवाना हो जाए तो मालिक को उसके बेचने से अच्छा मुनाफा हासिल हो। तो अगर वो जानवर बेचने की नीयत से परवरिश कर रहा है तो उसकी आमदन पर ज़कात देना लाजिम है। अगर वो जानवर वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए परवरिश कर रहा है तो फिर उस पर ज़कात देना वाजिब नहीं है। इसी तरह ऊँटों की, गायों भैंसों की और बकरियों की जो मुकर्रा हद है या मुकर्रा मिकदार है उसे भी हदीस पाक के ज़रिए वाज़े किया गया है। अब ऊँटों के बारे में ये हुक्म है कि 5 से लेकर 24 ऊँटों तक हर 5 के बाद एक बकरी ज़कात देनी चाहिए। यानी अगर आपके पास 5 ऊँट हो जाए तो उन पर ज़कात देना लाजिम हो जाता है और वो 5 ऊँटों की ज़कात एक बकरी की रकम के बराबर है। और अगर 5 से कम ऊँट है तो उस पर कोई ज़कात नहीं है। इसे भी बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ में अगर देखें तो हमारे सामने जो अहादीसें मुबारका आती हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि कितने ऊँटों पर ज़कात देना लाजिम है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 ऊँटों से कम में ज़कात नहीं है। इसी तरह एक और हदीस पाक भी हज़रत अबू सईद से ही मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 ऊँटों से कम में ज़कात वाजिब नहीं है। इसी तरह गायों और भैंसों की जो मुकर्रर तादाद है वो 30 है। यानी अगर आपके पास 30 गायें या 30 भैंसें हों तो उन पर ज़कात देना लाजिम हो जाता है और 30 गायों और या 30 भैंसों पर 1 साल का बछड़ा या बछड़ी बतौर ज़कात दी जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 गायों पर 1 साल का बछड़ा या बछड़ी और 40 गायों पर 2 साल का बछड़ा या बछड़ी बतौर ज़कात दी जाएगी। अब यहाँ हमें ये देखना है कि गाय, भैंस और बैल का एक ही हुक्म है और अगर ये दोनों जानवर मौजूद हों, यानी 10 गायें हों और 20 भैंसें हों या 20 गायें हों और 10 भैंसें हों तो इनको मिलाकर इनकी तादाद पूरी करके उन पर ज़कात दी जाएगी। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिस सिनफ की जानवर ज़्यादा होंगे, यानी अगर गाय ज़्यादा है तो गाय का बच्चा ज़कात में दिया जाएगा और अगर भैंसें ज़्यादा हैं तो भैंस का बच्चा ज़कात में दिया जाएगा। और अगर दोनों बराबर हैं, यानी 15 गाय और 15 भैंसें हैं तो ज़कात में वो बच्चा लेंगे जो दरमियाने दर्जे का होगा और 1 साल से कम उम्र का नहीं होगा। यानी गाय या भैंस में से जिसका बच्चा 1 साल की उम्र का हो और वो सेहतमंद हो, तवाना हो तो उसकी ज़कात अदा की जाएगी। इसी तरह भेड़ और बकरियों की ज़कात के बारे में हुक्म है कि 40 से कम भेड़ या बकरियों पर ज़कात आयद नहीं होती, जबकि 40 से लेकर 120 बकरियों तक एक बकरी बतौर ज़कात देनी चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर 40 पर एक बकरी है 120 तक, यानी 40 के बाद एक बकरी और 120 तक अगर बकरियां हैं तो एक ही बकरी ज़कात दी जाएगी। इसके बाद 200 तक 3 बकरियां दी जाएंगी और फिर हर 100 पर एक बकरी बतौर ज़कात देना लाजिम होगा। यहाँ पर हमें भेड़, बकरियों, गायों, भैंसों और ऊँटों की मुकर्रर जो तादाद है उससे आगही हासिल हो गई कि हमारी शरीयत ने इनके लिए इनका क्या निसाब मुकर्रर किया है। अब आजकल के दौर में हम देखते हैं कि रिहायशी मकानात, फ्लैट और प्लाट वगैरह होते हैं तो उनके बारे में भी हमें ये जानना चाहिए कि शरीयत ने क्या हद मुकर्रर की है। ऐसे मकानात, प्लाट और फ्लैट जो कारोबारी और तजारती मकासद के लिए हैं उन सब की मालियत पर ज़कात है, यानी उनसे हासिल होने वाली जो आमदनी है
उन पर ज़कात है, या उनकी जो असल रकम है उन पर ज़कात है। और इसमें हम ये नहीं देखते कि हमने प्लाट कितने का ख़रीदा था, बल्कि हम ये देखते हैं कि मौजूदा दौर में अगर वो प्लाट हमारे पास है, हम उसके मालिक हैं, तो आज उसकी क्या कीमत है, उसकी मौजूदा कीमत के एतबार से हम उस पर ज़कात अदा करेंगे। और इस तमाम के साथ साथ हम माल तिजारत को भी देख लेते हैं कि माल तिजारत जो है उस पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं है। तो सामान्य तिजारत पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, इनसे हासिल होने वाले मुनाफे पर ज़कात होती है, बशर्त ये कि वो मुनाफा निसाब को पहुंचता हो और वो इतना हो कि उस पर 1 साल का अरसा गुजर चुका हो, यानी 1 साल से वो हमारे इस्तेमाल में नहीं है। अगर मुनाफा इतना कम है कि वो हमारी अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है तो फिर उस पर ज़कात आयद नहीं होती। लेकिन अगर मुनाफा इतना ज़्यादा है कि वो पूरे साल से हमारे पास सेव हुआ है, बचा हुआ है, और हम उससे इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर उस पर ज़कात देना लाजिम हो जाता है। इसी तरह आज के दौर में टैक्स देने का जो एक कंसेप्ट है और टैक्स दिया जाता है, तो उसके बारे में भी मुख्तलिफ लोगों का ये ख्याल है कि हम चूँकि टैक्स अदा करते हैं तो इसलिए हमें ज़कात अदा करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक गलत कंसेप्ट है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ज़कात हमारी एक इबादत है, एक ऐसी इबादत है जिसे नमाज की तरह फ़र्ज़ करार दिया गया है। और हदीस पाक में हमने ये पढ़ा कि नमाज अदा करने वाला और ज़कात अदा करने वाला अल्लाह का वली है। तो हम जब भी ज़कात अदा करते हैं तो हम इबादत का हक़ अदा कर रहे होते हैं, हम अपनी इबादत में मसरूफ़ होते हैं, जबकि टैक्स के मामले में ऐसा नहीं है। इसलिए टैक्स देने से ज़कात अदा नहीं होती। ज़कात से तो हमारा माल पाक होता है, हमारे अमाल पाक होते हैं, हमें अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है, लेकिन टैक्स से इन तमाम बातों का हुसूल मुमकिन नहीं होता। इसलिए टैक्स को ज़कात की मद में शामिल कर लेना जो है वो सही नहीं है। ज़कात की जो शराइत हैं उन्हीं के मुताबिक अगर माल अदा किया जाएगा तो फिर ही ज़कात अदा होगी। इसी तरह बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है तो इसलिए हम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर सोना चांदी नहीं है और हमारी बुनियादी ज़रूरियात के अलावा हमारे पास इतनी रकम बची हुई है तो हमें उस पर ज़कात देना लाजिम हो जाता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर करेंसी के तौर पर सोना चांदी इस्तेमाल हो रहा था, यानी एक दिनार जो थे वो सोने के होते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और आज के ज़माने में यही बुनियादी फ़र्क है। आज के ज़माने में सोना चांदी को बतौर करेंसी इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसकी बजाय कागज़ी रुपए इस्तेमाल होते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि तमाम हमारे पास जितने भी रुपए हैं उन्हें सोने या चांदी में से जिसके साथ मिलाकर ज़कात देने से गुरबा और मसाकीन और दीगर मसारिफ में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, तो हमें उसकी ज़कात देनी चाहिए। अब ज़कात की अदायगी का तरीक़ाकार भी शरीयत ने हमारे लिए वज़ा कर दिया है कि जो शख्स 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर करेंसी या रकम का मालिक है और वो इसकी बुनियादी ज़रूरियात से ज़्यादा हैं और उस रकम को उसके पास पड़े हुए 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है और उस शख्स पर कोई कर्जा भी नहीं है और उसकी कोई और परेशानी या ज़रूरत भी नहीं है, तो फिर वो उस माल पर 2.5% यानी 2.5 के हिसाब से ज़कात अदा करेगा और ये उस पर लाजिम है। इसी तरह ज़कात के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात गर्दिश करते रहते हैं कि क्या वक्त से पहले ज़कात दी जा सकती है, क्योंकि एक बुनियादी कंसेप्ट ये चल रहा है कि ज़कात जो है वो सिर्फ़ रमज़ान के महीने में दी जानी चाहिए। तो हम जब इसको सहाबाए किराम के अमल से लेते हैं तो बहुत सारे सहाबाए किराम का ये मामूल था कि वो अपनी ज़कात शबान के महीने में ही निकाल कर अदा कर दिया करते थे ताकि लोग अपनी रमज़ान की तैयारी कर सकें। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत भी है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि क्या ज़कात अपने मुकर्ररा वक्त से पहले अदा हो सकती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इसकी इजाज़त दे दी। इसी तरह अगर आपका माल
जो पड़ा हुआ था, आपकी ज़रूरियात से ज़ायद था, वो चोरी हो जाए तो फिर ज़कात आप पर लाजिम नहीं रहती, बल्कि ज़कात जो है वो साकित हो जाती है। इसी तरह थोड़ी थोड़ी करके भी आप अपनी ज़कात को अदा कर सकते हैं, इसकी भी शरीयत ने इजाज़त दी है। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़कात की जितनी भी आपकी रकम बनती है वो आप यकमुश्त अदा करें। हो सकता है कि आप इस काबिल ना हो कि आप ज़कात की उस रकम को एक ही दफ़ा अदा कर सकें, या ऐसे मसारिफ आपके इर्द गिर्द मौजूद ना हो जो ज़कात को लेने के अहल हों, तो आप उसको पूरा साल थोड़ा थोड़ा करके भी अदा कर सकते हैं, इसकी भी इजाज़त दी गई है। इसी तरह 2 साल की ज़कात भी इकट्ठी दी जा सकती है। जैसा कि आपने अपने पिछले साल की ज़कात किसी भी वजह से अदा नहीं की, तो मौजूदा साल में आप पिछले साल की ज़कात और इस साल की ज़कात को मिलाकर अदा कर सकते हैं। इसी तरह हमें हदीस पाक से ये भी पता चलता है कि ज़कात में किस दर्जे का माल देना चाहिए। हदीस पाक हमारी रहनुमाई और हिदायत के लिए मौजूद है और हमें हर मामले में अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से रुजू करना चाहिए। तो कबीला गाजरा कैस के हज़रत अब्दुल्ला बिन माविया गादरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 काम ऐसे हैं जो शख्स उन्हें सरंजाम दे वो ईमान की हलावत महसूस करेगा। जो शख्स ये यकीन रखते हुए एक अल्लाह की इबादत करे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, अपने माल की ज़कात हर साल खुश दिली और फ़राख दिली से अदा करे। और नंबर 3 के बूढ़ा, खारिज़दा, बीमार और घटिया जानवर ज़कात में ना दे, बल्कि दरमियाना माल दे कि यकीनन अल्लाह ताला ने तुमसे ना तो बेहतरीन माल मांगा है और ना ही बुरा माल देने का हुक्म दिया है। इस हदीस पाक से इस बात की तसरीह और वजाहत मिल जाती है कि ज़कात के लिए किस किस्म का माल देना जायज़ है और लाजिम है। अब ऐसा ना हो कि आपके पास 30 गाय या 30 भैंसें या 40 भेड़ और बकरियां मौजूद हैं, तो जब ज़कात देने का टाइम आए तो आप कोई बीमार बकरी या बीमार गाय का या भैंस का बच्चा उसकी ज़कात में दे दें, तो ऐसी ज़कात देने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह ताला की इबादत है, तो इबादत को एहसन तरीके से अदा किया जाना ज़रूरी है। इसी तरह इस हदीस पाक से इस बात की भी वजाहत हो जाती है कि हराम माल से ज़कात अदा नहीं की जा सकती। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि हम हमारे पास चूँकि माल की फरावानी हो गई है, चाहे उसका कोई भी तरीका हो, हलाल हो या हराम हो, तो हम इसमें से ज़कात अदा कर देते हैं और निसाब से ज़्यादा अदा कर देते हैं ताकि हमारा माल पाक हो जाए। तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, हराम माल से ज़कात अदा नहीं की जा सकती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक खजूर के बराबर भी हलाल कमाई से खैरात की तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, मगर हलाल कमाई से अल्लाह ताला उसे अपने दाहिने दस्ते कुदरत से कबूल फरमाता है। और फिर खैरात करने वाले या ज़कात करने वाले की ऐसी परवरिश करता है जैसे तुम में से कोई अपने बछड़े की परवरिश करता है, यहाँ तक कि वो नेकी पहाड़ के बराबर हो जाए। इसी तरह हराम माल के बारे में जो हदीस मुबारका हमें मिलती है, इसे सही मुस्लिम में रिवायत किया गया है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसे शख्स का जिक्र किया गया जो लंबा सफ़र करता है और सफ़र की वजह से उसके बार गुबार आलूद हैं। वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहता है या रब या रब, हालांकि उस शख्स का खाना पीना हराम है, उसका लिबास हराम है, उसकी ग़ज़ा हराम है, तो उसकी दुआ कैसे मकबूल होगी। यानी हराम माल से ज़कात अदा की जाए तो वो रब के यहाँ मकबूल नहीं होती। इसी तरह घटिया माल भी बतौर ज़कात देना जायज़ नहीं है और ऐसे अमल करने से हमें सख्ती से मना किया गया है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि खजूरों के मौसम में इंसार अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक खजूरों के खोशे लाकर मस्जिद नबवी के सतूनों के दरमियान लटका देते थे, जिसे असहाबे सुफ़ा और फ़ुकरा और मसाकीन भूख के वक्त खा लेते थे।
کسی شخص نے غیر معیاری کھجوروں کا خوشہ لٹکا دیا تو اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور اس میں سے گندے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو کہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم خود اسے ہرگز نہ لو سوائے اس کے کہ تم اس سے چشم پوشی کر لو، اور جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز لائق ہر حمد ہے، بے شک سبحان اللہ۔ تو حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی یہ آیہ مبارکہ نازل ہو گئی تو اس کے بعد کوئی بھی شخص بری چیز نہیں لے کر آتا تھا، بلکہ ہر شخص بہتر سے بہتر چیز لاتا اور مسجد نبوی میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ اب زکوٰۃ کے بارے میں اور بھی بہت سارے کوسچنز ہیں، جن میں سے ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بتانا ضروری ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر اس بات کی ہمیں تصریح ملتی ہے کہ جسے زکوٰۃ دی جائے اسے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ مال زکوٰۃ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اپنی کسی بات کی وجہ سے پسند نہ کرے یا خود کے لیے وہ ہمدردی کو پسند نہ کرتا ہو، تو اس لیے اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ انعام کے طور پر یا غریب بچوں کو عیدی کے نام سے دے دیں تب بھی ہماری زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا زکوٰۃ سے مستحق طلبہ کی مدد کرنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو ایسے تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں جہاں طلبہ سے فیس لی جاتی ہے یا نہیں لی جاتی، تو پھر زکوٰۃ فنڈ جمع ہوتا ہے تاکہ نادار اور مستحق طلبہ کی ضروریات پوری ہو جائیں، تو یہ ٹھیک ہے، یعنی مستحق طلبہ کی مدد زکوٰۃ کے پیسوں سے کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ زیور کی زکوٰۃ بیوی ادا کرے گی یا شوہر ادا کرے گا۔ تو ہمیں یہاں پر اس بات کی وضاحت مل جاتی ہے کہ جو زیور کا حقیقی مالک ہوتا ہے وہی زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ مثلاً اگر شوہر نے بیوی کو زیورات صرف استعمال کے لیے دیے ہوئے ہیں اور اصلاً ملکیت اسی کی ہے، وہ جب چاہے ان کو فروخت کر لے تو پھر زکوٰۃ بیوی ادا نہیں کرے گی بلکہ شوہر ادا کرے گا۔ لیکن اگر بیوی اپنے زیور کی خود ہی مالک ہے، وہ چاہے تو استعمال کرے چاہے تو بیچ دے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ جو ہے وہ بیوی خود ادا کرے گی، اور کسی کی شادی کے لیے اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے، لیکن یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ زکوٰۃ کے مال سے غیر ضروری رسمیں جو ہیں وہ ادا نہ کی جائیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح والدین اور اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جن قرابت داروں کا نفقہ آدمی کے ذمہ واجب ہے انہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں، مطلب ان کی ضروریات ہر صورت میں انسان نے پوری کرنی ہے۔ مثلاً آپ کے ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی، بیٹا پوتا وغیرہ اور بیوی، تو ان سب کا جو خرچہ ہے وہ پورا کرنا مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ باقی رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، اور ان میں بہن بھائی، خالہ پھوپھی ماموں چچا یا ان کی اولاد میں سے کوئی بھی غریب ہے تو اسے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دینا افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں گے کہ کون ضرورت مند ہے، کون مستحق ہے۔ اگر تمام مصارف زکوٰۃ آپ کے اپنے رشتہ داروں میں موجود ہوں تو پہلے آپ ان کو فوقیت دیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے غربا اور محتاج اور مساکین کو دی جائے گی، اور اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے، اور ہماری عبادت بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے، اور ہمارے جو غریب رشتہ دار ہیں ان کی بھی دنیا کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ یہ کچھ ضروری اور بنیادی مسائل تھے جنہیں ہم نے ڈسکس کیا اور زکوٰۃ کے پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور ہمیں اپنی عبادات کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔